discuss about some questions from first order differential equation. It's a second class. आप लोग फर्स्ट क्लास देख लीजिए, अगर वो समझ में आ जाता है तो ये भी समझ में आ जाएगा। अभी सेकंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं समझाऊंगी आपको। यहाँ पर देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो फर्स्ट वीडियो में क्या था, हमें एक्स एंड वाई को डी वाई एंड डी एक्स के टर्म के साथ लेके जाना है, फिर उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना था। बट हेयर आप जो क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे ना, आप इसको डी वाई एंड डी एक्स के साथ अलग से सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो आप इसको अगर सेपरेट करना चाहिए, डी वाई के पास वाई का टर्म एंड डी एक्स के पास एक्स के टर्म लेके जाना चाहते हैं, तो लेके जाना बहुत ही थोड़ा दिक्कत की बात है। तो आप ट्राई भी करके देखिए, आप लेके नहीं जा सकते हो। तब इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, लाइक इसमें भी tan इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स मीन्स tan एक्स प्लस वाई। सो you cannot separate x and y to dy and dx term. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन। सो द टर्म एक्स प्लस वाई प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज द प्रॉब्लम. So you have to substitute x plus y plus 1 in terms of other function. Like I am substituting x plus y plus 1 in term of v square. Okay. Why v square? Because if we take x plus y plus 1 equals to v square, then square root of x plus y plus 1 equals to v. Here is the given square root of x plus y plus 1 equals to v. So we can substitute square root of x plus y plus 1 in terms of v. Okay. Now, if you start substituting x plus y plus 1 in terms of v square, then we have to substitute dy by dx in terms of dv by dx. So we are differentiating both sides with respect to x. Both sides. We are differentiating both sides with respect to x. So the differentiation of x with respect to x is 1, and the differentiation of y with respect to x dy by dx, and the differentiation of 1 with respect to x is 0, and the differentiation of v square with respect to x 2v dv by dx. So we have to substitute dy by dx in terms of dv by dx and the x plus y plus 1 in terms of v. So we are substituting. So here we are getting dy by dx is equals to 2v dv by dx minus 1. Okay, clear? Now हम क्या करते हैं, इस टर्म को dy by dx का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, साथ में x प्लस वाई प्लस 1 का वैल्यू भी v से रिप्लेस करते हैं, दैट मीन्स सब्सटीट्यूट करते हैं. देयरफॉर 2v dv by dx minus 1 equals to v by 1, we can write. So we get, so we have to now the previous process, आपको dv के साइड में v का टर्म एंड dx के साथ x का टर्म, अदरवाइज कोई कांस्टेंट भी हो तो लेके जाना पड़ेगा, द प्रीवियस वन. ओके, सो 2v dv by dx equals to v plus 1, right? So we have to take the v, all the v terms in terms of with dv and the all x terms with dx. So here no x terms. देखिए अब यहाँ पर आपको कोई x का टर्म नहीं दिखेगा, ओनली v दिख रहा है. सो 2v by v plus 1 dv equals to dx, we can write it. Clear? Okay. So अभी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट. सो इंटीग्रेटिंग both side. So integration to v plus 1 dv equals to dx plus c. C is an integrating constant. Okay, so we have to integrate this. So we are taking the constant outside the integration symbol. Now v by v plus 1,
So v plus 1 minus 1 by v plus 1, we can write like this, equals to dx plus c. Okay. So 2, 1 plus, we are using distributing property, v plus 1 by v plus 1, that means 1 minus 1 by v plus 1 dv equals to dx plus c. So the integrating value is 2 into v minus log v plus 1 equals to x plus c. So now we have to replace v in terms of x. So here we are taking v equals to square root of x plus y plus 1. So we have to substitute this term again here. So 2 into square root of x plus y plus 1 and minus log square root of x plus y plus 1 outside the square root equals to x plus c. So this is the required equation. I hope it's clear for you. So come to the second question. Second question is tan inverse dy by dx equals to x plus y. So यहाँ भी देखिए आप dy के साथ x के टर्म एंड dy के साथ y के टर्म एंड dx के साथ x के टर्म आप लेके नहीं जा सकते हो. देखिए ध्यान से करना. तो हम पहले तो dy बाई डी एक्स को अलग करते हैं. सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan x प्लस वाई. हम ये लिख सकते हैं. अभी आप इसको फॉर्मूला में भी ब्रेक करके, आपको लगेगा कि फॉर्मूला में ब्रेक करके हम dy के साथ y के टर्म एंड dx के साथ x के टर्म लेके जा सकते हैं. नहीं, ये लेके जाना बहुत ही दिक्कत की बात है. तो इसको और भी ज़्यादा ईजी और ईजी तरीके से करने के लिए हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. हम x प्लस वाई को हम किसी और टर्म से सब्सटीट्यूट कर देते हैं v से. ओके. तो अभी dy बाई डी एक्स को भी आपको v के टर्म से सब्सटीट्यूट करना है. सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं. Why with respect to x differentiating? Why we differentiating with respect to x? Because dy by dx, we have to replace dy by dx in terms of other terms. It's dv. So differentiation of x plus y equals to v with respect to x is, the differentiation of x with respect to x is 1, and the differentiation of y with respect to x dy by dx, and the differentiation of v with respect to x dv by dx. So dy by dx equals to dv by dx minus 1. Okay. Therefore dv by dx minus 1 equals to tan v by 1. Okay. So now dv by dx equals to tan v प्लस 1. ओके. सो अभी क्या करना था, अभी v के dv के साथ v का टर्म एंड dx के साथ x का टर्म. यहाँ पर कोई x का टर्म आपको दिख नहीं रहा है. सो हम क्या करते हैं, dv के साथ v के टर्म, सो tan v प्लस 1 कर देते हैं इक्वल्स टू dx ऐसे रख देते हैं क्योंकि कोई x का टर्म नहीं दिख रहा है. अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं. So integration dv by tan v plus 1 equals to integration dx plus c equals to integrating constant. Okay. Equals to integration cos v by sin v plus cos v dv equals to dx plus c. यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन देके यूज़ करके ये इंटीग्रेशन करना है. सो लेट कॉस भी इक्वल्स टू, हम पकड़ लेते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स साइन v प्लस कॉस v प्लस b इंटू साइन v plus cos v. Okay. Equals to a cos v, sorry this is v d by dv, जिसके जिस फंक्शन के टर्म पे ये रहेगा उसी हिसाब से डिफरेंशिएट करना है उसके रेस्पेक्ट में. माइनस कॉस साइन v
प्लस बी इंटू साइन वी प्लस कॉस बी। ओके, सो अभी कंपेयर करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा लिख लूँ, ए प्लस बी कॉस बी एंड बी माइनस ए साइन वी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट both sides we get a plus b equals to 1 and b minus a equals to 0. that means b equals to a. so यहाँ से मिलता है हमें a equals to और 2a equals to 1, that means a equals to half, so b equals to also half. so we can write, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, therefore इंट्रोगेशन। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस भी की जगह में लिखेंगे ये वाला टर्म लिखेंगे। सो डी बाई डी वी, उससे पहले ए भी था, कॉस साइन वी प्लस कॉस भी प्लस बी इंटू साइन वी प्लस कॉस भी होल डिवाइडेड बाय साइन वी प्लस कॉस भी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। अभी ये ए एंड बी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ए एंड बी बोथ आर हाफ, सो 1/2 डी बाई साइन वी, यहाँ पर डी भी था सॉरी, साइन वी प्लस कॉस भी प्लस हाफ ऑफ साइन वी प्लस कॉस भी डी भी होल डिवाइडेड बाई साइन वी प्लस कॉस भी। अभी ये क्या किया मैंने क्या किया, ये डी वी से ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये डी वी इससे कैंसिल होने के बाद डी ऑफ रहता है और इसमें डी वी रह जाता है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। सो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हाफ बाहर लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू साइन वी एंड कॉस बी बाय साइन वी प्लस कॉस बी, ओके, प्लस 1/2 ये साइन वी प्लस कॉस भी बाय टू डी वी बाय साइन वी प्लस कॉस भी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। ओके, सो ये आपका दिख रहा है क्या, जो टर्म आपको नीचे डिनोमिनेटर पे गिवन है उसी का ही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पर साइड में थोड़ा लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, तो आपको इंटीग्रेट करना हो रहा है डी एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका, 1/x का, तब आप क्या लिखते हो, लॉग मॉड एक्स लिखते हो। ओके, लिखते हो कि नहीं। वैसे ही आप यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू द टर्म जो आपको नीचे दिख रहा है, तो इसे इसके तरह ट्रीट करेगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग मॉड साइन वी प्लस कॉस बी। ओके, समझ में आया ना कि आप जब डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स लिखते हो तब लॉग मॉड एक्स लिखते हो। अभी यहाँ पर भी आप ये साइन भी प्लस कॉस भी का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू उसी के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी इंटीग्रेशन लॉग मॉड, ये नीचे वाला टर्म साइन भी प्लस कॉस भी होगा, प्लस 1/, ये तो आपका ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद डी वी रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन ओनली भी होगा, इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी। अभी हम क्या करते हैं, भी का टर्म एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो हमने किसको भी किसको पकड़ा, भी पकड़ा हुआ है हमने, एक्स प्लस वाई को भी पकड़ा हुआ है, तो ये हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो हमें मिल रहा है क्या, लॉग मॉड, ये हाफ था आपका, साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई मॉड्यूलस कंप्लीट 1/2 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। आप अगर चाहो तो और भी अच्छे से लिख सकते हो, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस सी। हमने ये 2 को एलसीएम कर दिया और ये सी डैस्ट कर दिया, ठीक है ना। और भी अच्छे से लिखोगे तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपका आता है एक्स माइनस वाई प्लस सी डैस्ट। सो साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई आता है, और साथ में ये मैं अगर अलग से पकड़ूँ तो सी डबल डैश में पकड़ ली, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कार्ब बता सकते हो, नहीं तो रिक्वायर्ड आंसर बता सकते हो। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन था। अभी थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहाँ पर भी सेम तरीके से होगा। क्या करना है आपको, लेट एक्स प्लस वाई को आपको भी पकड़ना है, ठीक है ना, और इसको भी फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो आपको एक बात डाउट होगा कि मैम आप कैसे समझ रहे हो कि एक्स प्लस वाई हमें भी पकड़ना है, नहीं तो स्क्वायर रूट में एक्स प्लस वाई प्लस वन को भी स्क्वायर पकड़ना है। अब तभी पकड़े। देखिए मैं तो आपको दो तरीका बताती हूँ। जब आपको कोई क्वेश्चन गिवन होंगे ना, सो यू हैव टू ट्राई टू सेपरेट द एक्स टर्म विद डी एक्स एंड द डी वाई टर्म विद डी वाई टोटली। मतलब आपको वाई का सब जो यहाँ पर वाई का टर्म मिलेगा, पूरा वाई का टर्म डी वाई के साथ और पूरा एक्स का टर्म डी एक्स के साथ लेके जाना है, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर डी वाई के साथ कोई भी एक्स का टर्म रह जाता है तब इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगा। अभी यहाँ से तो अब अलग से एक्स का एंड वाई का टर्म अलग करके ये दोनों में लेके जाना दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत था, इसीलिए हम एक्स प्लस वाई को भी पकड़ रहे हैं। तो आपको ऐसे ही देख के करना है। राइट, क्लियर, समझ में आया ना? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं फिर से समझाऊंगी आपको। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ओके, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देती हूँ और यहाँ से पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेती हूँ, जो हमें डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 मिलता है। अभी बाई इक्वेशन 1 से हम पहले तो ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे डी आई बाई डी एक्स की जगह लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई की जगह लिखेंगे भी। सो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर भी प्लस 1। सो अभी टेन स्क्वायर भी मतलब क्या होता है, टेन स्क्वायर भी प्लस 1 मतलब आपका आता है सेकेंड स्क्वायर भी, ठीक है ना। अभी ये क्योंकि भी का टर्म है टोटली, तो आपको क्या करना था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, डी भी के साथ भी का टर्म पूरा टोटली लेके जाना है और डी एक्स के साथ एक्स का टर्म, यहाँ पर एक्स का टर्म नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो डी भी बाई सेकेंड स्क्वायर भी हम कर देते हैं और डी एक्स के साथ कुछ नहीं, डी एक्स रख देते हैं, ठीक है ना। तभी अभी हम क्या करते हैं, इसको पहले तो ये लिख लूँ, कॉस स्क्वायर भी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स। अभी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर सकते हो। देखिए डी बी के साथ भी के टर्म, डी एक्स के साथ एक्स का टर्म हो सकता है, नहीं तो कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये अब इंटीग्रेट करने के लायक हो गया है। तो अभी अब इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो आपको मिलता है कॉस स्क्वायर भी डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। अभी कॉस स्क्वायर है, अभी ये कॉस स्क्वायर भी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, ये करना दिक्कत है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, इसको लीनियर पावर में लेके जाइए। सो कॉस टू भी प्लस 1 बाई 2 होगा, क्यों, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर भी का होता है कॉस भी प्लस 1, डी वी रह जाता है और 2 नीचे मैंने लिख दिया डी एक्स प्लस सी। अभी इसका अलग अलग से करिए। देखिए 1/2 तो आपका बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के बाद, एंड कॉस 2 भी का इंटीग्रेशन आता है साइन 2 भी, और 2 के लिए ये नीचे डिवाइड होगा 2, क्योंकि मैंने बताया था इंटीग्रेशन होता है डेरिवेटिव को पूरा रेसिप्रोकल। सो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग द कॉस 2 बी, देन कॉस 2 बी विल बी साइन 2 बी एंड विथ 2 comes to the multiplying with sin 2b, but here it is integration the reciprocal of derivative. So cos 2b, the integration of cos 2b sin 2b, and 2 the term 2 will be divided by the whole term, okay, plus, and the differentiation of 1 with respect to b equals to x plus c, okay. So here sin 2b plus 2b equals to 4x plus c dash, right? The LCM, total LCM. Now we are replace b in terms of x. Here our b is x plus y, so we are putting the term value of a b. So sin x 2 into x plus y plus 2 into x plus y equals to 4x plus c dashed. So sin 2 into x plus y plus 2 into y minus x equals to c dash. This is the required equation or the required curve, okay. अभी क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, ये आप अपने खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तब मैं बताऊँगी। हम क्या करते हैं, x माइनस वाई को यहाँ पर भी पकड़ेंगे,
सो यहाँ पर आपको डी वी बाई डी एक्स निकालना है, विथ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है विथ टर्म्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स, और भी यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद आपको इसको इंटीग्रेट करके करना है। आप करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई टू द पावर 2x माइनस वाई। ओके, यहाँ पर भी हमें अलग करने में दिक्कत हो रहा है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x माइनस वाई को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएटिंग ये भी हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करने से 2 इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ओके, सो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अभी इसका वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं बाई 1 में। बाई 1 में हमें क्या मिलता है, 2 माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई टू द पावर भी। ओके, सो डी वी बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई टू द पावर भी माइनस 2। दैट मीन्स माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर भी माइनस 1। अभी ये पूरा भी का टर्म हमें डी वी के साथ और डी एक्स के साथ एक्स का टर्म, तो हम करते हैं डी भी माइनस डी भी बाई भी माइनस 1 ई टू द पावर भी माइनस 1 इक्वल्स टू डी एक्स। इसका मतलब हमें लिख सकते हैं डी भी बाई 1 माइनस ई टू द पावर भी, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अभी ये इंटीग्रेटिंग करने के लायक हो गया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड्स। सो हमें मिलता है डी भी बाई 1 माइनस ई टू द पावर भी इक्वल्स टू डी एक्स प्लस सी। ऑब्वियसली सी इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, यू हैव टू राइट इट इक्वल्स टू। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताइए, ट्राई कीजिए कैसे करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगा क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो आपको ऊपर में रहना चाहिए ई टू द पावर भी का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई टू द पावर माइनस भी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं डी वी। देखिए ये पूरा टर्म जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे इसका डेरिवेटिव ऊपर आपको गिवन होंगे, ऐसे ही करना होता है। तो इसका सब्सटीट्यूट करने से क्या होता है, मैं अगर सब्सटीट्यूट करूँ ई टू द पावर माइनस भी माइनस 1 इक्वल्स टू पी से सब्सटीट्यूट करूँ तो माइनस ई टू द पावर माइनस बी डी वी इक्वल्स टू डी पी। तो अब यहाँ पर आप ई टू द पावर माइनस बी डी वी इक्वल्स टू माइनस डी पी रिप्लेस कर सकते हो। सो माइनस डी पी बाई पी इक्वल्स टू डी एक्स प्लस सी। अभी इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलता है, माइनस लॉग मॉट पी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अभी पी इक्वल्स टू आपको पता है, पी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस भी माइनस 1 आपको गिवन है, और ई टू भी मतलब आपको गिवन क्या था, 2x माइनस वाई। ये हम यहाँ पर रिप्लेस करके डायरेक्ट लिख देते हैं ई टू द पावर माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1। इसका मतलब आप लिख सकते हो ऐसे, सो इक्वल्स टू माइनस लॉग ई टू द पावर माइनस 2x माइनस वाई, और साथ में ये क्या था आपका माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसका मतलब आप लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस लॉग, ये माइनस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ई टू द पावर वाई माइनस 2x लिख के माइनस 1 कर देती हूँ इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और इसको अच्छे से लिखेंगे तो लॉग ई टू द पावर वाई माइनस 2x माइनस 1, ये ब्रैकेट में रखती हूँ इक्वल्स टू, ये यू पे नहीं रखती हूँ, तो इसको तो माइनस से यहाँ इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लॉग 1 बाई लिख देती हूँ, 1 बाई ई टू द पावर 1 माइनस 2x, लॉग का प्रॉपर्टी है ना, 1 बाई, क्योंकि ये माइनस को इस साइड में के ले लिया, इसके लॉग में कुछ नहीं है, बेस में ई है, प्लस सी लिखते हैं। इसका मतलब 1 बाई ई टू द पावर वाई माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस सी डैस्ट, हम ये लिख सकते हैं। तो ये होगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व और रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क मैंने दिया हुआ है 5, ये आप घर में ट्राई कीजिए, सबका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, क्वेश्चन नंबर देना, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर कमेंट सेक्शन पे दे देना,
और कोई भी करने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर करेंगे। ये मैं क्लास 12 की बोर्ड के आपके हिसाब से आपने बताया था कि मैम बोर्ड के सिलेबस वाइज आप कराइए, तो बोर्ड के हिसाब से मैं करा रही हूँ। ये आपका आता है डिफरेंशियल सॉल्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हम कर रहे हैं, तो इसका पहले वाला जो पार्ट 1 था वो हमने करा दिया हुआ है, वो ऑलरेडी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप ये सेकंड वाले कर रहे हैं, नेक्स्ट में थर्ड पार्ट करेंगे जो आपका होमोजीनियस के ऊपर बेस होगा। और हम जल्दी ही एक ट्रिक वाला इस वीडियो भी लेके आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे जल्दी में कोई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने में। आई होप यू ऑल गुड एंड आप सबको समझ में आ रहा है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।